Myself Praveen Kumar. I have secured All India Rank 3 in ESE 2018, All India Rank 5 in GATE 2018, as well as I have also secured All India Rank 7 in CSE 2020. Today I am going to discuss about how can be prepared the technical part of engineering service examination as well as GATE, and how did I prepare for optional that is my civil engineering in civil service examination. So I will start from engineering service examination. What I did, I ordered all the study materials of a coaching institute. First I made a plan of every subject. So first I started with solid mechanics. What I did, मैंने बेसिकली उस बुक को, उस स्टडी मटेरियल्स को एज ए टीचर माना, एंड देन आई स्टार्टेड रीडिंग द स्टडी मटेरियल्स ऑफ सॉलिड मैकेनिक्स. फर्स्ट आई while reading I made notes of that study materials. Then I also solved the conventional question that were coming as I started reading the study materials. After going through any topic of solid mechanics, first I would also solve the previous year questions of prelims. So in this way what I was able to do was to make notes out of that study materials, then also solve all the conventional questions that is given in that study materials, as well as I also solved all the previous year questions of prelims. So this was the first phase of my preparation, where I went through this process for every subject, be it solid mechanics, be it structural mechanics, or transportation engineering, or steel structures. So this was the first phase of my preparation. In the second phase, what I did, I made short notes out of that notes that I made from the study materials. Further, I also, after making short notes out of that study materials, I again solved the previous year questions of prelims. So in this way I was able to solve the previous year question of prelims twice, and in the way I also made short notes out of the notes that I made from the study materials. So this was the second phase of my preparation. Now I will discuss how did I proceed in my third phase. मैंने थर्ड फेज़ में अगेन अपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे उसको अच्छे से रिवाइज़ किया, एंड ऑल दी क्वेश्चंस जो भी प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स के क्वेश्चंस है जिसमें मैंने स्टार मार्क्स मार रखा था, जो मुझे लगते थे टफ़ हैं, उसको मैंने सॉल्व किया रिवाइज़ करने के बाद. एंड देन आई ऑल्सो गेव वेरियस मॉक टेस्ट ऑफ डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट. सो दिस वॉज बेसिकली थर्ड फेज ऑफ माई प्रिपरेशन. आफ्टर डूइंग द थर्ड फेज, then the examination phase came. In that phase again I revised the short notes that I made, and again I also revised various previous year questions that I found tough. And now I will discuss how did I used to solve the previous year questions of prelims. So after reading any topics of solid mechanics, for example if I am reading bending moment diagram, so what I will do, I will go to the previous year question booklet and I will solve the questions related to bending moment diagram. But how did I used to solve the questions? मैं questions ऐसे solve करता था कि सबसे पहले within time करूँ, then एक बार मैंने question solve कर दिए within time, फिर मैं answers match करता था, और after matching the answers मैं हर एक questions को analyze करता था कि जो क्वेश्चन सही हुए वो कैसे मैं सही कर पाया, कहीं तुक्का तो नहीं मारा था, एंड देन इवन इफ़ आई गेस वर्क, देन हाउ डिड आई रीच टू द आंसर. सेकेंड थिंग,
यदि मेरे से कोई सवाल गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, क्या ये कोई मेरे नॉलेज की कमी की वजह से गलत हुआ या फिर मैं सिली मिस्टेक किया। और जो भी मेरी लर्निंग होती थी इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते वक्त मैं उसको अपने शॉर्ट नोट्स में डाल लेता था। फर्दर all the solutions that is given in the solution of previous year question मैं उसके भी शॉर्ट नोट्स बनाता था जो मुझे लगता था मेरे शॉर्ट नोट्स में नहीं है। इस प्रोसेस के थ्रू मैंने एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। एंड अगेन आई विल ऑल्सो टेल व्हाट वाज द पर्पस ऑफ सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 3 और 4 टाइम्स। मेरा पर्पस ये था कि मुझे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस याद आ जाएं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, मैं सिली मिस्टेक ना करूं। थर्ड थिंग, मेरा ये पर्पस होता था कि मैं 100% सवाल सही करूं अपने सेकेंड और थर्ड अटैम्प्ट, जब भी मैं सेकेंड और थर्ड टाइम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहा हूं। तो ये मेरा अप्रोच था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का। नाउ आई विल प्रोसीड टू एग्जामिनेशन फेज ऑफ प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के टेक्निकल पार्ट में 3 घंटे का पेपर होता है जिसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं। अब मेरे टाइम काफ़ी टफ़ न्यूमेरिकल्स आए थे, तो मेरा स्ट्रेटजी ये था कि मैं अधिक से अधिक जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है उसे करूं और डेफिनेटली न्यूमेरिकल्स भी जितना मैक्सिमम हो सके वो करूं। बट ये प्रोसेस, ये थिंकिंग रहता था कि यदि कोई टफ़ क्वेश्चंस है, मेनली यदि टफ़ कैलकुलेशन है, तो मैं उस क्वेश्चन को स्किप कर दूं सो दैट माय टाइम मैनेजमेंट कैन बी गुड। And in this way I was able to attempt around 128 questions out of 150 questions, and fortunately my score was also one of the highest marks in that year in prelims technical part. So this was my strategy of prelims of ESE examination. Now I will proceed to the preparation of mains part of engineering service examination. मेंस पार्ट के लिए अगेन प्रोसेस बहुत सिंपल था। फर्स्ट, जो भी मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे उसको मैंने बहुत अच्छे से रिवाइज़ करता था हर एक टॉपिक को। यदि मैंने डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स के मुझे करने हैं तो मैं डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स के जो भी शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं उसको रिवाइज़ करता था। देन आई यूज़ टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त मेरा ये अप्रोच होता था कि जैसे भी तरीके से मैं एग्ज़ाम में सॉल्व करने वाला हूँ उसी तरीके से मैं हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा अपने रूम पे। तो मैं हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से लिखता था और फिर अगेन जिस तरीके से डिस्क्रिप्टिव वे में सॉल्यूशंस को बनाना होता है उस तरीके से मैं हर एक क्वेश्चंस को कम्प्लीटली सॉल्व करता था ताकि मैं कम्प्लीटली आंसर्स तक पहुँच सकूँ। इस तरीके से मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो भी कन्वेंशनल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसको मैं सॉल्व करता गया और हर एक क्वेश्चंस को मैं फिर अगेन एनालाइज भी करता था कि यदि सही हुआ है तो किस तरीके से सही हुआ है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली यदि गलत हुआ है तो क्यों गलत हुआ। इज़ इट बिकॉज़ कि मेरे पास फॉर्मूले याद नहीं थे या कुछ कॉन्सेप्ट की कमी थी, या फिर ये भी मैं ध्यान देता था कि मैं कैलकुलेशन या सिली मिस्टेक तो नहीं कर दिया। और जो भी लर्निंग होती थी वो उसी चीज़ को मैं वहीं पे लिख देता था कि क्या मेरी लर्निंग है, एज़ वेल एज़ मैं अपने मेंस के शॉर्ट नोट्स में भी लिख देता था कि क्या लर्निंग है मेरी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई विल गिव यू वन एग्ज़ाम्पल फॉर लाइक इन स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स व्हाट हैपेंस इफ़ यू आर सॉल्विंग, if you are analyzing a frame like structure either from moment distribution method या फिर आप stiffness method से एनालाइज करते हैं। होता ये है कि हम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्रेम है वो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल बीम के लिए आई दिया हुआ है, कॉलम के लिए 2i दिया हुआ है, तो मैं हर एक समय इस चीज़ को मिस्टेक करता था। तो मैं क्या किया, उस चीज़ को अपने शॉर्ट नोट्स में लिख देता था कि ये मेरी लर्निंग है, ये मैं मिस्टेक करता हूँ। तो इससे ये हुआ कि मैं उस चीज़ को हर एक समय रिवाइज़ करके सॉल्व करता था, तो मेरी वो मिस्टेक्स कम होती गई। और ये चीज़ हर एक सब्जेक्ट में एप्लीकेबल है। जो भी आपको गलत लगता है उस चीज़ को आप लिखिए और उसको रिवाइज़ कीजिए। अगेन मेरा ये अप्रोच था कि एटलीस्ट मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को 2 बार करूँ कम्प्लीटली,
और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो टफ़ क्वेश्चंस हैं, उसको मैं 3 या 4 बार कर लूँ, ठीक है। और दिस वाज द पार्ट ऑफ हाउ डिड आई प्रैक्टिस फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन and how did I analyze the previous year question. Now I will come to how did I make notes out of the previous year questions as well as various theoretical questions for the mains part. तो मैंने ये किया कि सिंस जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो ऑलरेडी मैंने अपने इनिशियल फेज ऑफ द प्रिपरेशन में शॉर्ट नोट्स बना लिया था, तो मैं उसी के ऊपर बिल्डअप किया अपने मेंस के शॉर्ट नोट्स। मैंने मेंस के शॉर्ट नोट्स में 3 से 4 बातों का ध्यान रखा। पहला ये चीज़ कि जो भी मेरी लर्निंग है, जो भी मैं मिस्टेक्स कर रहा हूँ, जो भी मेरे सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं, उस चीज़ को अपने नोट्स में डालूँ, पहला चीज़। सेकंड चीज़ मैं ये करता था कि जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस का स्टेप्स मेरे शॉर्ट नोट्स में हों। सिंस जो भी एनालिटिकल पार्ट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है, फॉर एग्ज़ाम्पल सॉलिड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स, यहाँ पे एनालिटिकल पार्ट है, तो ये क्वेश्चंस यदि आप कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो आप कर लीजिएगा। इसमें भी जो भी थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं या जो भी डिज़ाइन टाइप के क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस को मैं अगेन उसके स्टेप्स में अपने शॉर्ट नोट्स में डाल लेता था। लेकिन हर एक टाइप के क्वेश्चन का शॉर्ट नोट्स बनाना ये सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल होता है डिज़ाइन प्रॉब्लम्स में। मोस्टली स्टील स्ट्रक्चर, रीइंफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, इन सब के जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए मेरे पास जो भी उसके स्टेप्स हैं उसके शॉर्ट नोट्स थे। फॉर एग्जांपल यदि मुझे वाटर टैंक डिज़ाइन करना है आरसीसी में, या फिर मुझे रिटेनिंग वॉल डिज़ाइन करना है, या फिर स्टील स्ट्रक्चर्स में मुझे बोल्टेड या वेल्डिंग स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन करना है, तो मैं हर एक टाइप के क्वेश्चंस का जो भी स्टेप्स होता था वो अपने शॉर्ट नोट्स में डाल लेता था। तो ये मेरा तरीका था शॉर्ट नोट्स बनाने का। अगेन एक और पार्ट है इम्पॉर्टेंट अपने शॉर्ट नोट्स बनाने का, दैट इज़ थ्योरेटिकल पार्ट। जितने भी टाइप के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, हर एक के मैं छोटे छोटे नोट्स अपने मेंस के शॉर्ट नोट्स में बना लिया। एक तो ये चीज़ हो गया, और दूसरा चीज़ जो भी थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं मेरे प्रीलिम्स के शॉर्ट नोट्स में, जो मैं इनिशियल फेज ऑफ द प्रिपरेशन में बनाया था, उस चीज़ को भी मैं रिवाइज़ करता था अपने थ्योरेटिकल पार्ट के लिए। तो ये हो गया मेरा हाउ टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ कन्वेंशनल पेपर एंड देन हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स आउट ऑफ दैट क्वेश्चन। नाउ आई विल कम टू द पार्ट हाउ टू गिव mock test as well as the main exam of the ESE mains examination। तो मेरा ये अप्रोच था कि सबसे पहले मैं क्वेश्चन सेलेक्ट करूँगा पहले 5 से 10 मिनट के बीच में। सिंस सेक्शन ए और बी होता है, जिसमें सेक्शन ए के फर्स्ट क्वेश्चन और सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन दोनों कंपलसरी होते हैं, और फिर आपको किसी एक सेक्शन से 2 क्वेश्चन और किसी एक सेक्शन से 1 क्वेश्चन सेलेक्ट करना होता है। तो मैं पहले अच्छे से टाइम देके क्वेश्चन सेलेक्ट करता था और क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के सेलेक्ट करता था। होता ये है कि लोग हड़बड़ी में देखते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन हो जाएगा और सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर बाद में रियलाइज़ होता है कि कुछ उसमें ट्विस्ट है क्वेश्चंस में और फिर हम फंस जाते हैं। ये मेरे कुछ फ्रेंड के साथ भी हुआ था। तो मैं यही एडवाइस करूँगा आपको कि आप क्वेश्चंस को थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए और अच्छे से पढ़ के सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि आपने एक बार सेलेक्ट कर लिया फिर देन इट्स बिकम वेरी डिफ़िकल्ट कि आप बाद में चेंज कर पाएँ। तो पहला पार्ट ये हो गया कि मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर दूसरा पार्ट ये होता था कि किस ऑर्डर में क्वेश्चंस को करने हैं, क्योंकि एट द एंड आपको मार्क्स लाने हैं। तो मेरा फोकस ये होता था कि जो भी इजी क्वेश्चंस हैं उसको मैं सबसे पहले करूँगा और उसके सही आंसर्स लेके आऊँगा, और जो थोड़े टफ़ क्वेश्चंस हैं उसको मैं लास्ट में करूँगा। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन सेलेक्ट करता था और उसके ऑर्डर भी सेलेक्ट करता था कि किस ऑर्डर में करने हैं। उसके बाद मैं जिस ऑर्डर में सेलेक्ट किया हूँ उस ऑर्डर में सवाल को सॉल्व करता था, और मेरा फोकस ये रहता था कि हर एक टाइम मैं अपने टाइम वॉच को देखते रहूँ ताकि हर एक क्वेश्चंस में इक्वल टाइम दूँ। ऐसा ना हो कि किसी क्वेश्चन में मैं बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया
और बाकी इजी क्वेश्चंस में भी सही टाइम नहीं देने की वजह से मेरे मार्क्स सही नहीं आए। सो दिस वाज माय पार्ट अबाउट हाउ टू राइट द मेंस एग्जामिनेशन ऑफ इंजीनियरिंग सर्विस। नाउ आई विल कम टू द पार्ट दैट हाउ डिड आई प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ऑप्शनल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। अगेन सिंस मैंने सारे अपने नोट्स तैयार कर रखे थे अपने इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन से, तो मेरे लिए काफ़ी आसान था कि मैं उसी नोट्स को रिवाइज़ करता था और देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते थे। बट जो लोग डायरेक्टली सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को फॉलो कर रहे हैं, जो लोग डायरेक्टली सिविल सर्विस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, दे शुड गो थ्रू द इंटायर प्रोसेस ऑफ मेंस एग्ज़ाम दैट आई रिसेंटली डिस्कस्ड फॉर इंजीनियरिंग सर्विस। तो अगेन मैं अपना बताऊंगा कि मैंने क्या किया अपने सिविल सर्विस एग्ज़ाम में ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए। तो मेरा ये था कि जो भी मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं पहले हर एक सब्जेक्ट को, फॉर एग्ज़ाम्पल यदि मुझे फ्लूइड मैकेनिक्स करना है तो मैं फ्लूइड मैकेनिक्स के नोट्स को रिवाइज़ करता था, अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज़ करता था, अपने मेंस के नोट्स को रिवाइज़ करता था जिसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के स्टेप्स दिए हुए हैं उसे भी याद करता था। एक बार रिवाइज़ करने के बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सिविल सर्विस के ऑप्शनल्स के जो क्वेश्चंस हैं उसे भी करता था। अगेन इंजीनियरिंग सर्विस में जो क्वेश्चंस आ रखे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के उसे भी सॉल्व करता था। एंड देन जो फॉरेस्ट सर्विस में क्वेश्चंस आ रखे हैं उसे भी सॉल्व करता था। इन सब को सॉल्व करने के बाद यदि कोई डिफरेंट क्वेश्चंस है जिसका मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बना रखा है, जिसके स्टेप्स मैंने नहीं लिख रखे हैं अपने शॉर्ट नोट्स में, उसको मैं अपडेट कर देता था, उसके स्टेप्स लिख देते थे। अगेन यदि कुछ लर्निंग हुआ है अपने मिस्टेक से उसे भी अपने शॉर्ट नोट्स में डाल देता था। एंड थर्ड थिंग इज़ सिविल सर्विस एग्ज़ाम के ऑप्शनल जो भी क्वेश्चंस पूछ रखे हैं एज वेल एज जो फॉरेस्ट सर्विस में क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, बहुत सारी डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। तो उन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। तो इस तरीके से मेरे पास एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव हर एक सब्जेक्ट के लिए शॉर्ट नोट्स तैयार हो गया। और जिस तरीके से मैंने डिस्कस किया फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए, उस तरीके से मैंने हर एक सब्जेक्ट में फॉलो किया। हर एक सब्जेक्ट में मैंने अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ किए। रिवाइज़ करने के बाद मैंने जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सिविल सर्विस, इंजीनियरिंग सर्विस एज वेल एज इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम के, उन तीनों के क्वेश्चंस को सॉल्व करता था। अगेन सिंस मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं थे तो मैं थोड़ा सा ये करता था कि जो भी क्वेश्चंस कॉमन हैं तीनों में उसको मैं ट्राई करता था स्किप करने का। हाउएवर जो भी नए क्वेश्चंस हैं, जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करता था। और जो भी उससे लर्निंग हुआ, जो भी नए क्वेश्चंस के स्टेप्स हैं एज वेल एज जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, उन सब के मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए। तो इस तरीके से एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव शॉर्ट नोट्स मेरा तैयार हो गया लास्ट तक आते आते। और दिस वाज द मेन रीज़न दैट्स वाई आई वाज एबल टू स्कोर decent marks in both 2019 attempt of civil service examination as well as 2020 attempt of civil service examination। मैंने 2019 में 299 का स्कोर किया, दैट वाज द हाईएस्ट। 2020 के अटेम्प्ट में मैंने 287 का स्कोर हासिल किया, वो भी आई थिंक इट इज़ द हाईएस्ट मार्क्स। लेकिन मैं एक और लर्निंग आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने सेकेंड अटेम्प्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग सिविल सर्विस में सीखा। वो ये था कि मेरा ये तरीका होता था सेकेंड पेपर ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में कि सेकेंड पेपर में मोस्टली थ्योरेटिकल होते हैं अराउंड 70% और 30% न्यूमेरिकल होते हैं। तो मेरा ये स्ट्रैटेजी था कि मैं मैक्सिमम न्यूमेरिकल सवाल को सेलेक्ट करूं, क्योंकि न्यूमेरिकल सवाल में चांसेस ये होता है कि आप यदि करेक्ट आंसर तक पहुंच गए तो आपको डेफिनेट मार्क्स मिलते हैं। हाउएवर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में ये होता है कि बहुत ज़्यादा मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं। लेकिन मेरे साथ ये एक प्रॉब्लम हो गया कि मैंने सही टाइम नहीं दिया क्वेश्चंस को सेलेक्ट करने में अपने सेकंड पेपर इन 2020 के अटेम्प्ट में। और इससे हुआ ये कि मैंने ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए जिसमें बहुत बड़ा मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आई वुड से
कि एक कैनेडी थ्योरम के थ्रू हम डिज़ाइन करते हैं चैनल इन इरिगेशन, जिसमें बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है और उस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें काफ़ी सारे आइट्रेशन करने होते हैं। तो मैं उसमें सारे पेज मेरे ख़त्म हो गए और 5 आइट्रेशन के बाद मेरा कन्वर्ज नहीं हुआ। तो दैट वाज माय फर्स्ट मिस्टेक कि मैंने सवाल को सही तरीके से सिलेक्ट नहीं किया। और जो उसका दूसरा क्वेश्चन था वो भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन था और उसमें डाटा गलत दिया हुआ था यूपीएससी के क्वेश्चन में। सो दिस वाज 2 मिस्टेक आई डिड एंड दैट्स वाई 12 मार्क्स मेरे कम हो गए पिछले ईयर से और वो पेपर 2 में ही कम हुए। सो दिस वाज माय स्ट्रेटजी फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। फर्दर मैं यही कहूँगा कि आप अपने प्रिपरेशन का जो एक प्रिंसिपल्स है वो ये है कि आप अपने बेसिक्स को बहुत अच्छा रखिए। बेसिक्स अच्छा रखने के लिए सबसे पहले जो भी बेसिक स्टैंडर्ड कोई भी बुक है, मैं तो किसी कोचिंग के स्टडी मटेरियल से रेफ़र किया था, आपको जो भी अच्छा लगता है उसे कीजिए, लेकिन उसको बनाते वक्त अपने अच्छे से एक नोट्स तैयार कर लीजिए और बनाते वक्त कन्वेंशनल सवाल भी साथ के साथ सॉल्व कीजिए। और सॉल्व करते वक्त ट्राई कीजिए कि आप अपने आंसर्स को ना देखें, आप खुद से उस सवाल को सॉल्व करें। ये एक जनरल प्रिंसिपल है कि आप अपने फाउंडेशन को अच्छा रखें और अपने शॉर्ट नोट्स बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बनाएं। एंड थर्ड थिंग, जो तीनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सिविल सर्विस के भी, सिविल सर्विस के ऑप्शनल के, इंजीनियरिंग सर्विस के, एज वेल एज इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑप्शनल के, यदि आप इन तीनों को फॉलो कीजिएगा, चाहे आप इंजीनियरिंग सर्विस करें, चाहे आप सिविल सर्विस या चाहे आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस करें, ये तीनों यदि आप सॉल्व करते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो आई थिंक यू कैन स्कोर रियली वेल इन सिविल इंजीनियरिंग पार्ट ऑफ एनी एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।